ठीक है। एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अमर आपके पास आते हैं। मान लो कि मेरे पास दो क्लासेस हैं, और एक क्लास है ए और एक क्लास है बी। अगर मुझे ए क्लास का कंस्ट्रक्टर बी क्लास में कॉल करना है तो मैं कैसे करूंगा? Uh, then we can use this block. We can use this block inside the constructor of A block to call the constructor of B block. दोबारा दोबारा। We can use this block inside the constructor of A block to call B block. Not B block, हम्म। to call the B class B, ओके। constructor ओके। of class और B. मुझे करंट क्लास का अगर मुझे कंस्ट्रक्टर कॉल करना हुआ तो फिर मैं कैसे करूंगा? Sorry, sir, I didn't get you. How? ओके, देयर आर टू क्लासेस। Hmm, अगर आप कह रहे हो कि दिस ब्लॉक यूज करेंगे, राइट? hmm. तो दिस ब्लॉक क्या करता है पहले? This block calls the constructor of a particular calls the constructor, another constructor विच कंस्ट्रक्टर? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। of the same class, I think. Uh, ओके, देन हाउ वी कैन कॉल अ कंस्ट्रक्टर ऑफ अनदर क्लास? no, if there are different parameterized constructor inside a class, then we can call another constructor of different parameter using this block. Uh, there is another concept called super block also. With that, we can call the parent constructor. We can call. Yeah. ओके, देखो दो क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। अगर मेरी कोई चाइल्ड क्लास है और मेरी पेरेंट क्लास है, देन मैं कंस्ट्रक्टर में मेरी जो भी पहली लाइन होगी, मान लो कि मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ तो जो भी पहली लाइन होगी वो आपके डिपेंड होती है कि आप दिस लिखो या सुपर लिखो। अगर मेरी दूसरी क्लास मेरी पेरेंट क्लास है, देन आई विल कॉल अ सुपर। ठीक है। देन सुपर मेरे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक कंस्ट्रक्टर में से मुझे दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और सेम ही क्लास का, तो वो कैसे होगा? तो उसके Of लिए this. दिस यूज होता है। ओके, चलो। ज्योति आप पे आते हैं। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या डिफरेंस है? सर इंटरफेस में हाँ सर, इंटरफेस हम कॉल कर रहे हैं तो विद द यूज ऑफ इम्प्लीमेंट कीवर्ड, और किसी क्लास सुपर क्लास को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है विद द यूज ऑफ इम्प्लीमेंट कीवर्ड, एंड abstract is used to make an abstract variable and methods. If you want to inherit the methods of an abstract class, we can use extend keyword. And सर और ये इसमें abstract में all the methods are not an abstract methods, whereas in interface we can all the methods are an abstract methods. ओके, बट आफ्टर जावा पॉइंट एट यू कैन ऑल्सो पुट अ डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस, राइट? हाँ सर, after 1.8 we can put default abstract methods. If you ओके। are not implementing the particular method from interface, then we can put a default keyword, so that we can't if we want not to like implement those methods, we can do it in that way, sir. ओके, सो आई हैव टू रिक्वायरमेंट्स। I have abstract class, I have interface. So when I can use interface or when I can use abstract class? Mm, sir, when interface are used when we are uh, compulsorily, we want to implement all those methods, we can use interface. No, And if like we have some, this is no. Let me stop you. In interface, we are implementing all those methods, but after Java 1.8, we allow default or static method also. So in abstract class also, only those method you can extend or override, which you are declaring as an abstract, right? So it's not a perfect answer. So I just want to know कि मैं कहाँ पे यूज कर सकता हूँ कि मुझे abstract class यूज करनी है, मुझे interface यूज करना मालूम है सर, आइडिया नहीं है। है। ओके, नो प्रॉब्लम।
किसी ने एक बार मोहम्मद अयान ने आंसर भी कर दिया कमेंट्स में। ठीक है। इन व्हेन यू आर यूजिंग ए क्लास, लेट मी आंसर दैट, कैन वी एक्सटेंड अ मल्टीपल क्लास? Yes. कैन वी एक्सटेंड मल्टीपल क्लास? No, sir, no, sir. No. We can't extend multiple classes. Multiple is not possible बिकॉज ऑफ? because the multiple. मल्टीपल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ? No, no. अमन, बिकॉज ऑफ? Sir, because if we want to extend two classes, but both such as A and B, or both has the same method as say hello, or these are implemented class, and we want to implement in C class. So Wait. When I ask you because of, do not uh, revolve around all the questions. Do not try to create a scenario. If I tell you कि explain करो, then you have to explain. I am asking why it's not possible. So just give me the one-liner answer. If I ask you, okay, what is this problem? Then you can explain me कि ये methods है, ये method है, तब दिक्कत आती है ना? अभी मैं पूछ रहा हूँ why, like ऐसा क्यों है? sir, because in Java, if we want to extend two methods, or both method has a different same method name with different implementation, then we then how compiler decide ki which method he have to call? Because of this we You cannot can access two methods. easily say, if you can check, I have mentioned in notes also. It's an ambiguity problem when we have Yes, a sir. two method with the same name, or we can say about a diamond problem, right? Yes, sir. So you can easily say that कि ये प्रॉब्लम होती है. Do not give chance to interviewer कि वो तुमसे एक और क्वेश्चन पूछे. जितना तुम बोलोगे, बोलने पे डिपेंडेंट नहीं है. अगर तुम सीधे एक लाइन में आंसर कर रहे हो या फिर स्पेसिफिक वर्ड्स में आंसर कर रहे हो, तो हो सकता है कि कम चांसेस हो अगला क्वेश्चन आने के. लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो और उसमें कुछ भी वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि एक नया क्वेश्चन फिर उसमें से आ जाएगा, बिकॉज तुम्हें नहीं पता है तुम क्या बोले जा रहे हो. सो ट्राई टू कंट्रोल योर वर्ड्स एंड उसे अच्छे से आंसर करो. ठीक है, अब अमर पे चलते हैं. ठीक है, अमर, अनदर क्वेश्चन फॉर यू. सो अगर मैं ऐसा सिनेरियो, मैं राहुल आपके पास, अमन आपके पास दोबारा आता हूँ कि मेरा सिनेरियो है कि मेरी एरर थ्रो हो रही है. ठीक है. अब मेरा एक कोड है. ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर थ्रो कर सकता है. ठीक है. कोई मान लो कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, फाइल एंड ऑफ एक्सेप्शन थ्रो कर दिया. तो मैं कैसे हैंडल करूंगा इस सिनेरियो को? मतलब व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ हैंडलिंग दिस सिनेरियो? Sir, we can use multiple catch blocks. Firstly, which code is a risky code? We can put it in the try block, and then we can use multiple catch blocks. Such as first catch block is for first exception, then second exception, which is not the parent class. मतलब we can use first child, फिर then child, फिर child, फिर then its parent, और लास्ट में हम एक्सेप्शन यूज कर सकते हैं फॉर कलेक्टिंग ऑल दी. if any other exception is found in the risky code, then it catch the all exceptions when you use it in the last of the block ओके, गुड. of all the ठीक है. code. ठीक है, लड़कियों कुछ गलत बताया? No, sir. It's right. अब मानो कि मुझे, अब किसी बच्चे ने ग्रुप में लिखा था कि कस्टम एक्सेप्शन नहीं पढ़े. पढ़ाऊंगा वो भी. ठीक है, जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तब भी हर चीज अपने स्थान पे इम्प्लीमेंट होती है. तो रितिका, क्वेश्चन ये है तुमसे कि अगर मुझे कोई भी, अभी तो मैं नॉर्मल एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ. ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन, एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन. अगर मुझे कोई भी कस्टम एक्सेप्शन या फिर जो मेरी पहले से अवेलेबल एक्सेप्शन है, ये अगर मुझे थ्रो करनी हुई, ओके, तो मैं क्या यूज करूंगा? और मान लो कि अभी मैं थ्रो भी कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट ने या फिर मैंने वो हैंडलिंग कोड नहीं लिख रखा, इस केस में क्या सिनेरियो फॉलो होगा? पहले मैं थ्रो कैसे करूंगा, थ्रो हो जाएगा तो सिनेरियो क्या फॉलो होगा? Yes, sir. We can create custom exception using throw keyword.
And in order to define the custom exception, we have to extend any one of the unchecked exception. So it's not, there is no burden to handle those exceptions. If we extend a checked exception also, we have to we can delegate that No, responsibility. listen the question. मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं कैसे कस्टम एक्सेप्शन डिफाइन करूंगा। आई एम सेइंग अगर मुझे कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करनी हुई है ना, और उस केस में अगर मैंने हैंडल नहीं कर रहा है रखा है वो रिस्की कोड, तो क्या सिनेरियो फॉलो होगा? Then we can handle it using throws keyword. थ्रो और थ्रोज कीवर्ड दोनों, अगर मान लो कि मेरी जो एक्सेप्शन आप थ्रो कर रहे हो वो चेक्ड एक्सेप्शन नहीं है, तो इस केस में थ्रोज कोई बेनिफिट देगा आपको? No. देन हाउ वी हैंडल इट? By throwing the exception to the JVM. Okay, JVM so will handle it. okay, JVM, and inside the component name JVM Default handler, exception handler. Okay, good, good. ओके, तो अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, माइट भी तुम इसको ना बता पाओ, अगर बता पाओ तो एक बहुत अच्छी बात है। लेट्स सपोज यहाँ थ्रेड नहीं चल रहा है, ध्यान देना मेरी बात। ये मेरे एक एप्लीकेशन है, ओके। अब एप्लीकेशन के अंदर से मैंने एक पैरेलल प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इसको आप थ्रेड बोल लो, सेपरेट थ्रेड बोल लो, जो बोल रहे हैं। ये मेरी एप्लीकेशन है, ओके। इसका टास्क है कि ये मुझे कहीं से एक डेटा उठा के लेके आएगी, बट जब ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगी उसके 2 मिनट बाद, 1 सेकंड बाद, बट इसके स्टार्ट होने के बाद ही एक सेपरेट थ्रेड खुलेगा, ओके। और मैं चाहता हूं ये सेपरेट थ्रेड मेरी एप्लीकेशन से जो भी काम हो रहा है वो उठाए और किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रख दे। मतलब इसको कहते हैं इवेंट लॉगिंग, ठीक है। जब हम स्प्रिंग बूट वगैरह पढ़ लेंगे, सारी चीजें पढ़ लेंगे, तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो अब मुझे आंसर देना, मल्टी थ्रेडिंग तुमने पढ़ रखी है, अगर ये प्रोसेस मान लो कि इसको यहां से यहां जाना है, ये प्रोसेस को यहां जाना है, ठीक है, ये इतना टास्क है, तो जब ये यहां से यहां आ जाएगा तो एक सेपरेट पैरेलल में टास्क खुल जाएगा, ठीक है ना, 3D मॉडल, ओके। अब ये वाला जो टास्क है वो कुछ अलग वे में चला जाएगा। अब इसे यहां से यहां तक आने में, लेट्स सपोज वो ये यहां आया और ये फेल हो गया, ओके। तो जो अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट टास्क खुला था, इसका क्या होगा? सर like it depend like will it totally be 100% depend on the task of the process which is currently executing? Okay. So let's suppose for example, Mhm. if it get failed, then the second thread will also get failed. Like the data will not be available. So either we need to handle it via exception or just stop that specific thread, or allow or we can use some thread keywords like ओके, wait चलो or इसको थोड़ा और इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि ये मेन थ्रेड है जो अभी चला है, ये चल रहा है, ये यहाँ से आया, इसने अपना टास्क पूरा कर लिया, ओके। ओके सर। बट जो सेपरेट थ्रेड चला था, सर इसको यहाँ पे 1 घंटा लग गया, ओके। तो आप बताओ ये थ्रेड कंप्लीट होगा या फिर इस 1 घंटे का वेट करेगा? सर थ्रेड कंप्लीट हो जाएगा सर। क्यों? ये तो इसका पार्ट ऑफ प्रोसेस ही है, इसे छोड़ दोगे क्या? नो फर्स्ट वाला चलो इस क्वेश्चन के लिए सबको चांस देता हूँ मैं। रितिका, माइक ठीक हो गया? चलो बताओ। एक बार प्लीज फिर से रिपीट कर दो सो दैट मैं एक थ्रेड है, मेन थ्रेड, ओके। मेन थ्रेड, ये पूरा मेन थ्रेड का टास्क है, ओके। जैसे चल रहा है मेन थ्रेड, यहां से यहां तक चलेगा। अब जैसे ही मेन थ्रेड हाफ पे आएगा, एक पैरेलल में थ्रेड खुल जाएगा। पैरेलल थ्रेड का काम कुछ भी है, मतलब लॉग छापना है, कुछ भी है, उससे भूल जाओ, बस एक जॉब खुल जाती है ना। अब ये पैरेलल थ्रेड चला, ये 1 घंटा ले लिया, और ये सिर्फ मिली सेकंड में एग्जीक्यूट हो सकता है, लेट्स सपोज 1 मिनट में। तो ये यहाँ आया और एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब जैसे तुमने देखा ना, जेवीएम में रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, तो जेवीएम की जो जॉब होती है क्लोज हो जाती है ना। वो सारी सी चीजें प्रिंट हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी अगर तुम लोगों ने डेवलपमेंट में गलती की हो, तो तुम्हें पता होगा कि अगर इन्फानाइट लूप में चले जाते हो तो जेवीएम चलता रहता है, देखा होगा, प्रोग्राम बंद नहीं होता। तो अब मुझे बताओ
कि ये तो एक तरीके से इन्फानाइट लूप ही है जो इसका चाइल्ड खुला है, नॉट एग्जैक्टली हम्म, चाइल्ड, पैरेलल प्रोग्राम जो खुला है। तो अब क्या होगा, ये मेन प्रोग्राम वेट करेगा, या फिर जो सेपरेट थ्रेड है उसका वेट करेगा, या फिर अपनी जॉब खत्म कर देगा, या फिर होल्ड करेगा 1 घंटे तक कि भाई जब तक तुम कंप्लीट नहीं होते मैं हूं। तो हमने कुछ कीवर्ड्स लगा रखे हैं लाइक जो हम जॉइन और ये सब लगाते हैं मल्टी थ्रेडिंग में। मैं कुछ और बच्चों को इनवाइट कर लेता हूँ, तब तक तुम लोग सोच लो, सबके पास आऊंगा अभी। नाउ इट्स इनफ, हाँ तुमने सोच लिया होगा रितिका। सर आई थिंक it will wait till the other program finish its work. That हम्म other thread that takes 1 hour of the time. हम्म। Uh, yeah. देखो मैं बताता हूँ, Mm-hmm. मैं तुम लोगों से इतनी देर से जो कह रहा था सेपरेट थ्रेड है, वो मैं क्यों कह रहा था कि रिसेंटली हमें एक प्रॉब्लम आई थी जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट में। जो मेन थ्रेड है, अगर मैं बोलता हूँ सेपरेट थ्रेड है, सेपरेट, इट नो वेयर डिपेंडेंट टू माई मेन थ्रेड। अगर सेपरेट थ्रेड को 50 घंटे भी लगेंगे, मेन थ्रेड अपनी जॉब कंप्लीट कर देगा। अब ये जो सेपरेट थ्रेड है, ठीक है, ये कब तक चलेगा, जब तक तुम्हारी एप्लीकेशन चल रही है, जब तक तुम्हारा जेवीएम चल रहा है। बिकॉज सेपरेट थ्रेड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर जेवीएम, नॉट योर मेन थ्रेड, समझे? क्योंकि सेपरेट थ्रेड है, डिपेंडेंसी तो है ही नहीं। ये Mm-hmm. बताऊंगा मैं तुम्हें जब हम स्प्रिंग बूट करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आती है। जब तुम, आई डोंट नो कि तुम किस कंपनी में काम करते हो या क्या करोगे, ठीक है। जब तुम पूरी इंडिया को सर्व कर रहे होगे, और जब तुम ये मेन थ्रेड को चॉक कर दोगे, तब ये प्रॉब्लम आएगी। लाइक वी आर सर्विंग होल इंडिया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि धीमे धीमे डेटा दिखाएं, या फिर मतलब यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है उससे। तो दैट्स वाई ये, इस तुम चीजें जब सीखते हो, जब तुम एक जैसे मान लो अभी तुम हॉटस्टार में काम करो, और तुम्हारी टीम वो स्ट्रीमिंग वाली है जो मैच दिखाती है, देन यू गाइज आर लर्न सो मच, क्योंकि तुम पे इतना प्रेशर आएगा कि तुम बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। ठीक है, चलो जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। ठीक है, मोइन, क्वेश्चन का आंसर, माइक खोल ले। हाँ, मानो कि मुझे ऐसे कौन से मेथड है मेरी मल्टी थ्रेडिंग में जो लॉक रिलीज करते हैं, और मैं लॉक का मतलब क्या है एक्चुअली, मैं लॉक कैसे लेता हूँ, क्यों लेता हूँ लॉक, मुझे जरूरत क्या है लॉक की। Hi, sir. हाँ Uh, हाँ। so for every thread, there is a log in itself. So when a thread is executed, it has a log till it kind of finishes its program, its task. So when we want a, so wait a second, let me just close this. Yes, sir. So suppose there are three threads, and I want a thread to be have a certain kind of priority. Let's say I want it to be executed completely, so that for that I'll use a synchronized block, and in that we can unlock the log functionality of certain threads. So what तो I can, मोइन, लॉक लॉक कौन सा लॉक होता है, क्लास लॉक, ऑब्जेक्ट लॉक, बाइट लॉक, कौन सा क्या लॉक है वो? सारे ऑब्जेक्ट लॉक होता है. ओके, सो मेरे कौन से मेथड्स हैं जो लॉक्स को रिलीज करेंगे, और मैं सर लॉक अक्वायर कब करता हूँ, मतलब क्या फंक्शनलिटी है लॉक अक्वायर करने की? सर हम वेट और नोटिफाई फंक्शंस को यूज कर सकते हैं. ओनली दो? Sir, and the other is notify all. It notifies all other threads that I'm released now. ये कब काम आते हैं, लॉक को अक्वायर करने के लिए या लॉक को रिलीज करने के लिए? सर नोटिफाई रिलीज करने के लिए एक्वायर आते हैं, हमें यूज करते हैं. वेट, सर मैंने वेट और वेट। थ्रेड सर जब थ्रेड फिनिश करता है इट्स लॉक्स, तो इट नोटिफाइज टू ऑल अदर थ्रेड्स इफ यू यूज नोटिफाई ऑल फंक्शन. ओके, एंड वेट? सर इट इज यूज्ड सर इट्स यूज्ड टू वेट. फॉर एग्जांपल नहीं 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 नहीं, मुझे लॉक रिलीज करने के काम आता है वेट, या फिर अक्वायर करने के काम आता
सर वेट एक्वायर करने के काम आता है, नोटिफाई रिलीज करने के काम आता है। अच्छा ठीक है। कोई बताएगा, कोई भी पूरे पैनल में से, तुम सबके माइक्स है तुम्हारे पास, गलत बोला मोइन ने या सही बोला? सर आई थिंक वेट रिलीज करने के लिए काम आता है, वेट नोटिफाई और एक आंसर, नोटिफाई ऑल। एक आंसर। ठीक है, दूसरा आंसर। अबे सर तुम्हारी वेट शक्ल देखने एक्वायर के लिए कर थोड़ी बुलाया मैंने। सर वेट बोलो कुछ। एक्वायर करने के लिए आता है, और नोटिफाई नोटिफाई और रिलीज करने के लिए आता है। तो ठीक है। बेसिकली वेट एक्वायर करने के लिए आता है और नोटिफाई नोटिफाई हम्म, ऑल रिलीज करने के लिए आता है। अच्छा ठीक है। नोटिफाई नोटिफाई करने के लिए तो सेम एंड वेट एक्वायर करने के लिए होता है लास्ट। अच्छा ठीक है, इपाना। Sir, when wait method needs to get into the waiting state, then it will release the log. And हम्म notify method will really, it's not compulsory that it will release the log immediately, but based on the scenario, it will release it. So log concept will be come into the picture when we use the synchronized keyword. अब तुम लोगों को अपने आंसर में और इपाना के आंसर में डिफरेंस आ रहा है? इट्स नॉट लाइक जेंडर इनइक्वालिटी। ओके, बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो गलत बोलेगी तो मैं उसको भी वैसे ही बोलूंगा जैसे तुम लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है। अपने आंसर में जैसे तुम लोग आंसर कर रहे हो और इबाना के आंसर में तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा हो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, तुम लोग फ्रेशर हो और वो लोग वो काम कर रहे हैं। ओके, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा होगा किस वे में आंसर करना है ना? और मोइन गलत बता रहे थे। तीन मेथड्स होते हैं, वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, जो कि लॉक रिलीज करते हैं। ठीक है। और अगर मैं पूछता हूँ कि लॉक मैं कब अक्वायर करूंगा, तो एज सुन एज आई एंटर्ड इनटू द सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक और सिंक्रोनाइज मेथड, मुझे लॉक चाहिए होगा। तो जिस मेथड के जिस थ्रेड के पास मेरा ऑब्जेक्ट लॉक होगा, वो उस पर्टिकुलर क्लास को या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाएगा, उसके मेथड को। समझ में आया? Yes.